میں آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کے انتخابات 30 اپریل کو ہوں گے۔ صدر عارف الوی نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ اس 7 مئی کے دوران تاریخ تجویز کی تھی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صدر کو خط لکھا۔ الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو بھی خط بھجوا دیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ آ گئی۔ صدر عارف الوی نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ صدر نے تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی تجویز کردہ تاریخوں پر غور کرنے کے بعد کیا۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی تک کی تاریخیں تجویز کی تھی۔ اعلامیے کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات ترجیحاً اتوار کے روز کرانے کی تجویز دی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صدر کو خط لکھا تھا۔ الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو بھی خط لکھ دیا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ممبران اور سیکریٹری نے شرکت کی۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ جیل بھرو تحریک میں گرفتاریاں دینے والے رہنماؤں اور کارکنوں کی نظر بندی کا حکم معطل۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے رہائی کا حکم دے دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے فواد چودھری، اسد عمر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت کا ایڈیشنل چیف سیکریٹری ڈی سی سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جواب طلب۔ ہائی کورٹ ملتان بینچ کا بھی گرفتار کارکنوں کی رہائی کا حکم۔ ملتان ساہیوال سے گرفتار 15 کارکن رہا ہو گئے۔ جیل بھرو تحریک لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ گرفتاریاں دینے والے رہنماؤں کارکنوں کی نظر بندیوں کا حکم معطل کر دیا گیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی رہائی کا حکم دے دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے فواد چودھری، اسد عمر کی درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ عدالت کا ایڈیشنل چیف سیکریٹری ڈی سی سمیت دیگر فریقین کو نوٹس۔ شاہپور جیل سرگودا سے فیاض الحسن چوہان، زلفی بخاری سمیت گرفتار 6 رہنما رہا۔ تمام رہا رہنما تھوڑی دیر بعد راولپنڈی روانہ ہوں گے۔ رہا ہونے والے رہنماؤں کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ رہائی پانے والے رہنماؤں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ اس موقع پر فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ اس ملک کے لیے عمران خان کی کال پر ہر قربانی دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں شاہپور جیل سرگودا سے فیاض الحسن چوہان، زلفی بخاری سمیت گرفتار 6 رہنما رہا ہو گئے ہیں۔ تمام رہا رہنما تھوڑی دیر بعد راولپنڈی روانہ ہوں گے۔ رہا ہونے والے رہنماؤں کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ رہائی پانے والے رہنماؤں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ انتظامیہ کی نااہلی۔ جامپور میں آٹا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہری 10 کلو کے تھیلے کے لیے دھکے کھانے پر مجبور۔ سیل پوائنٹس پر خواتین اور بزرگوں کی تذلیل۔ عملہ من پسند افراد کو نوازنے لگا۔ جاوید اقبال کی رپورٹ میں دیکھیے۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث جامپور میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ڈسپلن نہ ہونے کے باعث خواتین اور بزرگوں کی تذلیل ہونے لگی۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ وہ شوگر کے مریض ہیں، صبح سے قطاروں میں دھکے کھا رہے ہیں، جبکہ عملہ من پسند افراد کو نواز رہا ہے۔ مریض آدمی ہوں شوگر سے ساکو داہ کیتے نے تلے ڈھٹوں ان دے بعد پچھو آن لائن لگوں ان دے بعد دھکے دے تو پچھو دے ویل کیتے نے ان دے بعد اے ٹائم آ گئے اے آجن تو نہیں لائن کھڑوں جیرے گسے رندے انہیں کنے گھنتے کنے سناکت کار گھنن والے سناکت کار لائن والے کنے تو گھنن بیا کچھ ہے کہنی کوئی احساس کہنی۔ حکومت کو چاہیے کہ محلے محلے گھر گھر اٹا دے میں تکلیف نہ جو کاروبار اور دھکے توڑے اور تکلیف تھی بڑی زور دی مہربانی کریں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ 10 کلو آٹے کے لیے لائنوں میں خوار ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ ڈسپلن قائم کرے۔ سویر دیا کھڑے 18 چکر موٹر سائیکل دے لیں 18 چکر ہی تلیں موٹر سائیکل ہے کٹے دی تھیلی دی رسار تھی 4 کی 6 کی سارا کام تھی گئے دھکے نال نے دیکھ لینا سب بزرگ بندے ہوں ساکو مندے نال کر دیکھ لیں سویر دیا سا کھڑ ہوتے ہیں۔ لائنوں والوں کو اگنور کیا ہوا ہے اور جو درمیان میں آتے ہیں ان کو بار بار لگاتار دیا جا رہا ہے اور ہم کو یہاں پر ٹائم ضائع کروایا اور جمعے کا وقت ہے، نماز سے بھی ہم یہاں پر رہ گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے کی طرح گلی محلوں میں سیل پوائنٹس بحال کیا جائیں۔ شہریوں نے محکمہ فوڈ اور انتظامیہ سے سیکیورٹی اور ڈسپلن بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ آٹے کے حصول نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ جہاں پر خواتین کی تذلیل ہو رہی ہے وہاں پر بوڑھے اور دیگر آدمی بھی پریشان ہیں۔ ان لوگوں کا مطالبہ خدارہ مہربانی کر کے حکومت پرانے طریقے سے پوائنٹس کو بحال کرے تاکہ ان لوگوں کو بر وقت آٹا بھی مل سکے اور ان کی جو تذلیل کا سلسلہ ہے وہ بھی بند ہو سکے۔ ساتھی کیمرامین کے ساتھ جاوید اقبال، روہی، جامپور۔ بے لگام مہنگائی کے کاروبار سے ہر طبقہ بیزار۔ ملتان میں مہنگی ایل پی جی اور سوئی گیس کی قیمتیں بڑھنے سے تندور مالکان پریشان۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث نان اور روٹی مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ شکیل سلطان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بڑھتی مہنگائی سے ہر طبقہ پریشانی سے دوچار ہے۔ ایل پی جی اور سوئی گیس کی قیمتیں بڑھیں تو تندور مالکان نے بھی سر پکڑ لیے۔
उनका कहना था कि LPG 320 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि सुई गैस सिलेंडर के अखराजात भी पहुंच से बाहर हो गए, इसलिए नान और रोटी महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। आज से 6 महीने पहले जो हमें गैस मिल रही थी वो 150 या 200 रुपए किलो थी, अब सीधा वो 320 पे पहुंच चुकी है। लकड़ी भी महंगी है, उसमें और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हमारी वो सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। शापर है, अखबार है, उसमें घी है, घी बहुत महंगा हो चुका है, उसमें आटा है, मैदा है, सब चीज़ें महंगी हो चुकी है। इस वजह से हमें महंगा करना पड़ रहा है और हमें सुई गैस नहीं मिल रही, जिसकी मेन वजह सुई गैस की है। दुकानदारों का कहना था कि 10 से 12 रुपए में बिकने वाला नान और रोटी अब 20 से 40 रुपए तक फरोख्त हो रही है। बढ़ती महंगाई के बायस इनका कारोबार शदीद नुकसान की जद में है। गैस ने जम मारा, सीधा 300 280 पे चला गया। नान हमने 20 रुपए का किया, लेकिन हमें फिर भी बचत नहीं हो रही, क्योंकि उसमें मैदा बहुत महंगा हो गया। मैदे का कट्टू था 5500 रुपए का, वो चला गया 7500 रुपए पे। घी था तकरीबन 400, तो अब हो गया 500 520 पे चला गया। तंदूर मालकान ने हुकूमत से सस्ती सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। डॉलर की ऊंची उड़ान से महंगाई का आ गया नया तूफान। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक का इजाफा। दालें और चावल भी 20 रुपए फी किलो महंगे हो गए। महंगाई के पै दर पे वार से आवाम की चीखें निकल गईं। खानेवाल से मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट में देखिए। डॉलर की ऊंची उड़ान ने अवाम को परेशान कर दिया। एक ही रोज में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 30 से 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। दालें और चावल भी 20 रुपए फी किलो महंगे हो गए। शहरियों का कहना था कि अब गरीब के लिए घर में हंडिया बनाना भी मुश्किल हो गया। गरीब बंदा वैसे मर रहा है, क्या बंदा सौदा ले, जिसकी 400-500 रुपए दिहाड़ी है वो तो वैसे नहीं सामान ले सकता है। और मैं पूरे हफ्ते का लेके जाता था, अब एक दिन का लेके जाता हूँ राशन, महंगाई की वजह से सिर्फ। दुकानदारों का कहना था कि आए रोज बढ़ती कीमतों से कारोबार ठप हो गए। महंगाई के मारे शहरी एक एक पाव अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। जी, डॉलर की वजह से हर जो फैक्ट्री वाले हैं वो फौरन घी के रेट बढ़ा देते हैं। आवाम बेचारी परेशान हो जाती है कि फौरन रेट बढ़ जाता है, लेकिन उनके पास पुराने रेट का पड़ा होता है, वो पहले व्हाट्सएप पे मोबाइल पे दिखा देते हैं जी ये रेट आ गया है। हम भी परेशान हैं, आवाम भी बहुत परेशान है। बेलगाम महंगाई से जहां दीगर मसाइल जन्म ले रहे हैं, वहीं प्राइवेट मुलाजमत पेशा अफराद को बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरा टीम का खून निचोड़ लिया। मुल्तान में मजदूर काम की तलाश में सड़कों पर लुढ़ गए। कम उजरत और ज्यादा महंगाई ने मजदूर तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मजीद देखिए इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई के कारीवार, मजदूर तबके का जीना हुआ दुश्वार। मुल्तान में मजदूर काम की तलाश में मारे मारे सड़कों पर फिरने लगे। मजदूरों का कहना था कि हुकूमत ने सब कुछ छीन लिया है, अब बच्चों को तालीम देना और उनका पेट भरना मुश्किल हो गया है। मजदूर तबके का ख्याल नहीं है, ना इनको एहसास है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि आसमान से जो है ना बातें कर रही है, बेरोजगारी हो चुकी है महंगाई की वजह से। मजदूरों का मजीद कहना था कि पहले तो काम मिलता नहीं, अगर मिल भी जाए उजरत कम है, 2 दिन का राशन भी नहीं खरीद सकते। आटा, घी, दालें सब कुछ पहुंच से दूर हो गया है। अरे गरीब आदमी तो वैसे भूखा मर रहा है जी, जड़ा काम है नहीं है। चलो महंगाई हो, कारोबार हो, फिर तो है ना। अब पूरे हफ्ते से हम खाली जा रहे हैं, कोई काम नहीं किया, पूरा हफ्ता ऐसे जा रहे हैं, सारा दिन बैठ बैठ के वापस चले जाते हैं। लेकिन महंगाई हो, कारोबार तो महंगाई बहुत है। दिहाड़ीदार मजदूरों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली। शहर में मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। अहले इलाका साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। आलूदा पानी पीने से मुतादिद शहरी बीमार पड़ने लगे हैं। मज़ीद देखिए शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। शहर औलिया के मुतादिद फिल्ट्रेशन प्लांट्स अरसा दराज से गैर फाल हैं। जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस अक्सर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत अबतर है। नवा शहर के अब्दाली रोड पर वाक़िया प्लांट की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। शहरी कहते हैं पानी तो आता है मगर पाइप और टूटियां टूटने की वजह से ज़ाया हो जाता है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को कई माह से ताला लगा है। पानी में बड़ी दिक्कत होती है, किसी के घरों से भर लेते हैं या कोई किसी ने फिल्टर कोई घर में लगाया हुआ है तो बड़ी तंगी होती है। अक्सर औकात पानी नहीं मिलता, गंदा पानी पी कर ही गुजारा कर रहे हैं। जो हमारा ज़मीन से पानी आता है वही पी लेते हैं बस। शहरियों का कहना था कि वो आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से सेहत के कई मसाइल सामने आ रहे हैं। ये बंद रहता है भाईजान, ये हम तो दूर दूर से पानी भरने जाते हैं, कहीं से मिलता है कहीं से नहीं मिलता।
ये गंदा पानी गटरों का ही पी रहे हैं हम। पानी ये फिल्टर शुरू में हफ्ता खुला होगा, उसके बाद आज तक हमने नहीं देखा ये फिल्टर खुला है। शहरियों ने इंतजामिया से खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। सेक्रेटरी जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी जनूबी पंजाब सरफराज खान मक्सी की ज़ेर सदारत इजलास रवा साल जारी और नए तरक्याती मनसूबों की मद में फंड्स के इजरा का जायजा लिया गया। जनूबी पंजाब में 30 मनसूबों पर अब तक 64% काम मुकम्मल हो सका है। देखते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी की जेर सदारत इजलास जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी फहद हैदर बुजदार, नाज़िम आला जंगलात जावेद गुल, डायरेक्टर जंगली हयात नाज़िम जंगलात मुल्तान और बहावलपुर के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। रूही सी गुफ्तगू में सेक्रेटरी सरफराज खान मक्सी का कहना था कि रवाज साल जारी 2483 मिलियन के 30 मनसूबों पर अब तक 64% काम मुकम्मल हुआ है। हमारे पास सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत तकरीबन 30 के करीब स्कीम्स हैं, जिनमें से कुछ ऑन गोइंग हैं, कुछ नई स्कीम्स हैं। तो उनकी ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो 64% है, जो कि मेरे ख्याल में सेटिस्फैक्ट्री है। और जो हमारे पास फंड मौजूद है, इंशाल्लाह हम इनको साल के आखिर तक इंशाल्लाह इन सबको इस्तेमाल कर लेंगे। जनूबी पंजाब में महकमा वाइल्ड लाइफ में 2 स्कीमें जारी और 3 नई स्कीमों के लिए 164 मिलियन और फिशरीज के लिए 8 स्कीमें जारी हैं, जबकि एक नई स्कीम 341 मिलियन पर मुश्तमिल स्कीमों के लिए 272 मिलियन जारी हुए और 162 मिलियन रुपए इस्तेमाल होने के बाद प्रोग्रेस 61% रही। जबकि जंगलात की जारी 8 स्कीमों पर 540 मिलियन जारी होने के बाद 358 मिलियन रुपए इस्तेमाल हुए और 66% काम मुकम्मल हो सका। नाज़िम आला जंगलात जावेद गुल का कहना था कि फंड्स रिलीज होने के बाद तरक्याती स्कीमों में मजीद बेहतरी आ जाएगी। हमारी आज मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट डिस्कस हुई है। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे साउथ से रिलेटेड फॉरेस्ट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी उसके ओवरऑल 83% जो एलोकेशन हुई है उसकी यूटिलाइजेशन है। प्रोजेक्ट जो है ना बड़े स्मूथली चल रहे हैं। फंडिंग का कुछ इशू है, इलेक्शन की वजह से फंडिंग जो है ना वो कंट्रोलिंग रिलीज से रिमूव हुई है। फिर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की तो ऐसा ऐसा हो रही है, लेकिन जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होने हैं उनके लिए अभी डिसीजन नहीं हुआ। सेक्रेटरी जंगलात ने मुतलका अफसरान को तरक्याती मंसूबों पर कोताही न बरतने और अहदाफ को बर वक्त मुकम्मल करने की हदायत की हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। लिया में देही इलाकों में सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा सेहत मुतहरिक RHC चक 161 में मुतादिद सेहत की सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया गया। अस्पताल में डेंटल एक्सरे यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद देखिए जाहिर सरफराज की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल जी, महकमा सेहत की जानब से देही इलाकों के अंदर भी सेहत की सहूलियात हैं, उनमें मजीद बेहतरी के हवाले से इकदाम जो है वो जारी हैं। अगर बात करें तो CEO हेल्थ डॉक्टर सैम बतूल सुमरा साहबा ने दीगर जो अफसरान उनको हमरा चक नंबर 160 के रूरल हेल्थ सेंटर के अंदर, चक नंबर 161 के रूरल हेल्थ सेंटर के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ जो यहाँ पर स्कीम है उनके इफ्ताह कर दी, जिनमें अगर बात की तो डेंटल यूनिट है, साथ साथ एक्सरे मशीन है और उसके साथ साथ अगर बात हो यहाँ पर जो दीगर लैब टेस्ट के वाले से यहाँ पर जो मशीनें फराम की गई हैं उनका इफ्ताह किया गया है। डॉक्टर सैम बतूल सुमरा साहब से बात करें, मैडम साहब कौन कौन से इफ्ताह किए गए और इससे यकीनन देही इलाकों के लोग हैं उनको बेहतर सहूलत मिलेगी? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो ये रूरल हेल्थ सेंटर RHC 161 में आज हमारे पास जो ये सेक्रेटरी हेल्थ साहब की इनिशिएटिव है कि RHC को जो है प्रमोट किया जाए यहाँ पे जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनके लिए। तो इसमें है जो डेंटल यूनिट है, एक्सरे प्लांट है और CBC एनालाइजर है, लेबोरेटरी की अदर सर्विसेज भी रूरल हेल्थ सेंटर पे जो है उनको स्टार्ट किया जाए। पहले भी यहाँ पे मौजूद थी, मजीद इनको हमने आज इसके इनॉग्रेशन की है और 161 में ये सर्विसेज मौजूद होना यहाँ की कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और ये मीडिया के हवाले से भी और मैं अपने सारे जो टीम है इनके हवाले से इनको मुबारकबाद भी दूंगी और मैं ये मैसेज भी कम्युनिटी में देना चाहूँगी कि पूरी इलाके में ये बहुत बड़ी एक यहाँ पे नेमत मौजूद है और एक फैसिलिटी मौजूद है जिससे लोग यहाँ का फ़ायदा उठाएं। और बिल्कुल CEO साहब का बताना है कि यहाँ पर जो इकदाम हैं वो बेहतर से बेहतर किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए कि अस्पताल में सहूलत बेहतर होने से किस तरह फ़ायदा पहुँचेगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो CEO साहबा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें वीकली बेसिस पे बल्कि डेली बेसिस पे हमें गाइडलाइंस दी कि सबसे पहले हमने अपना एक्सरे यूनिट जो है वो फंक्शनल करना है, उसके बाद डेंटल यूनिट फंक्शनल है, उसके बाद फंक्शनैलिटी स्टेटस जो है वो डेली बेसिस पे हमसे पूछते थे लेबॉरेटरी का। और इससे मैं ये समझता हूँ कि जो है ना ये एक देहात के अंदर एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी। और मैं ये अपने मीडिया चैनल्स के थ्रू या बाकी दूसरे दोस्तों के थ्रू मैं ये कम्युनिटी में ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ
کہ اب جو ہے ना وہ शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी अपनी दहलीज़ के ऊपर ही इनके सारे मसाइल जो हैं सेहत के हवाले से सारे मसाइल सेहत के जो तमाम मसाइल हैं वो यहाँ पर हल किए जा रहे हैं, और इस वाले से तमाम जो डॉक्टर्स हैं, सीओ साहब हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं शहर ओलिया में मौसम बहार के अनोखे रंग। मुल्तान में बहार की आमद के साथ ही तबोबिया के सूखे दरख्तों पर गुलाबी फूल खिल गए। गुलाबी फूलों ने मंजर दिलकश बना दिया। ग्रीन बेल्ट्स पर खिले गुलाबी फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। इसी हवाले से देखते हैं अली रियाज की रिपोर्ट। मुल्तान में मौसम बहार ने अनोखे रंग बिखेर दिए। बहार की आमद के साथ ही तबूबिया के सूखे दरख्त पर गुलाबी फूल खिल गए। तबूबिया के दरख्तों पर मौसम बहार में पत्ते झड़ने के बाद ही फूल खिलते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर PHA ने बताया कि तबूबिया के दरख्त की खास बात यह है कि इस पर फूल तमाम पत्ते झड़ने के बाद निकलते हैं। ग्रीन बेल्ट में तबूबिया के दरख्त लगे हुए हैं। ये बेसिकली एक इम्पोर्टेड पौधा है और इसकी एक खासियत है कि ये पौधा जो है अपने तमाम पत्ते गिरा के उसके बाद पूरा फूलों से भर जाता है। शहरियों का कहना था कि तबूबिया के दरख्तों पर खूबसूरत खिले गुलाबी फूल देखकर मूड भी खुशगवार हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, PH बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये गुलाबी रंग के फूल है, देखकर आंखों को राहत मिलती है और ये पत्ते ही नहीं है, सिर्फ यहाँ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। इससे मुल्तान की रौनक में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। तबूबिया के दरख्तों पर फूल फरवरी के आखिरी हफ्ते से मार्च तक खिलते हैं, जबकि PHA की जानिब से मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में तबूबिया के दरख्त लगाए गए हैं। तबूबिया के दरख्तों पर खिले फूलों ने एक तरफ जहां मंजर दिलकश बना दिया है, तो दूसरी जानिब खुश्क दरख्तों पर गुलाबी रंग के फूल बहार का एक अलग मंजर ही पेश कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीमिया खान में नेशनल गैरिसन सेकेंडरी स्कूल में तकरीब। मैट्रिक में 1000 नंबर हासिल करने वाले 123 तलबा व तालिबात और अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले 43 बच्चों को इनामात दिए गए। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था कि रहीमिया खान में सबसे अच्छा नेशनल गैरिसन स्कूल है। मजीद देखिए आसिम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। रहीमिया खान के नेशनल गैरिसन सेकेंडरी स्कूल ने बहावलपुर बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान में तारीख रकम कर दी। 123 तलबा तालिबात ने 1000 से जायद नंबर हासिल किए। नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा को शील्ड दी गई। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था कि रहीमिया खान में सबसे अच्छा नेशनल गैरिसन सेकेंडरी स्कूल है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा पैसे लगा के जरूरी नहीं आप अच्छी तालीम ले सकें। आप अपने बच्चे को एक ऐसी डायरेक्शन पे ले आए और पोटेंशियल आपके बच्चे में मौजूद है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं आपको, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है। अगर हम यू टर्न लेके इनकी तरफ तवज्जो दें तो आने वाला कल पाकिस्तान का बेहतर हो सकता है, आने वाला कल आपके शहर के लिए बेहतर हो सकता है, आने वाला कल आपके खानदान के लिए बेहतर हो सकता है। साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां जाज अहमर का कहना था कि नेशनल गैरिसन सेकेंडरी स्कूल तरक्की, मेहनत और कामयाबी की बेहतरीन मिसाल है। जिस तरीके से ये स्कूल को, इस सिस्टम को लेके चल रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप है। उस पर मैं समझता हूँ ये इनकी टीम, अभी यासिर साहब बात कर रहे थे टीचर्स की, कि नो डाउट के टीचर्स का इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसमें पेरेंट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज माशाल्लाह 100 से ऊपर लेके आ रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे जो कैप्टन है टीम का वो यासिर साहब हैं, तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये सारी आपकी मेहनत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।